Is it fine now? Yes, ma'am. Okay. You all can see these two figures. In these two figures, AB is equal to PQ, right? Yes, ma'am. Angle ABC is also equal to angle PRQ. We can take, and BC I can take. BC is equal to PR. These are 4 and these are 5. Now tell me whether these two triangles are congruent or not. Yes, ma'am. They are As congruent. Uruj said, उरूज ने बोला कि मैम यहाँ पर 4 और 5 के बीच में एंगल है, जबकि यहाँ 5 और 6 के बीच में एंगल है. Yes, ma'am. Are these two triangles congruent or not? No, ma'am. Yes, ma'am. I think they are congruent. What about others? What do you all say? Abgeen, what do you say? Bhumi? Listen carefully. I have made you confused so that आपका concept clear हो जाए. देखो ध्यान से. हमने यहाँ पे लिया AB and PQ are equal, right? अभी हमें कोई भी प्रॉपर्टी अगर यूज करनी होती है तो हमें इंक्लूडिंग रखना जरूरी है. साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, तो आपके अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट है. यहाँ पे साइड एंगल साइड की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर साइड एंगल साइड अप्लाई हो रहा है, मींस हो गया काम. लेकिन फिर भी इसमें एक मिस्टेक है. लिसन, हमने कौन सी साइड ली? हमने पहले साइड ली ये दोनों, ठीक है, ये सही है. हमने ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया, तो ये वाला एंगल लिया. अभी साइड तो बेटा ये है. इस साइड के बाद आपके पास इधर ये वाला एंगल है, ये साइड है, ये वाला एंगल है, ये साइड है. हमने एक एंगल और एक साइड दोनों को स्किप कर दिया ना. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. यहां हमने लिए दिस साइड, दिस एंगल, दिस साइड, साइड एंगल साइड. बट इन दिस केस आई हैव टेकन साइड एंगल साइड. एंगल कौन सा होना चाहिए था इन दोनों के बीच में? दिस एंगल. अगर ये एंगल 60 होता, in place of this angle, if this is given 60, then our answer was right. Is it clear now? Yes, ma'am. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या सही है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि गलत कहाँ पे हो सकता है. दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी तब एप्लीकेबल होती है जब इंक्लूडिंग होना जरूरी है. ऐसा नहीं कि हमने कोई सी भी दो साइड ले ली, कोई सा भी एंगल ले लिया और कोई सी भी साइड ले ली. यहाँ बस इसमें यही मिस्टेक है. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, किसी को कंसेप्ट ना पता हो, तो आपको लगेगा दोनों फिगर भी सही है, साइड एंगल साइड भी एप्लीकेबल है, और आपके मार्क्स एग्जाम में कट हो जाएंगे. ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट when we are taking these two sides, then we have to check what angle are we using. Angle should be including. Is it clear to every one of you? Yes. So that's why this is wrong. साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी होने के लिए ये जरूरी है कि आप एंगल जो है वो दोनों साइड्स के बीच का हो, स्किप नहीं करना है. इफ वी आर टेकिंग दीज टू साइड्स, देन वी कैन वर्क ऑन दिस एंगल. If we are taking these two sides, we can work on this angle. But it should be same for other triangle also. I hope it's clear to each and every one of you now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we are working on RHS property. Can anyone tell me what is R here? Right angle, hypotenuse, Right angle. hypotenuse Right and angle, side. hypotenuse, and Yes, any side. one side. Yes, ma'am. This is ABC. This is PQR. ठीक है. In these two triangles, hypotenuse, suppose this Yes, is given 5, and any side we can take. Suppose I am taking these two sides. These two side triangles are congruent Yes, ma'am. Yes, ma'am. by, as hypotenuse we have any one side, either this side or this side. Important क्या है? 90 होना और एक hypotenuse होना. Two things are very important. There should be hypotenuse as well as one angle 90 degree. But side ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है. Now I have a question for all of you. What is the difference between
these two. यहाँ पर भी तो हम दो साइड और एक एंगल ले रहे थे, यहाँ पर भी हम दो साइड और एक एंगल ले रहे हैं. Ma'am, but in RHS it is angle- compulsory to take a 90-degree angle. Okay, you are saying it's compulsory to take a 90-degree angle. Suppose I am taking 90-degree in this case. I am And changing there this must be a figure. hypotenuse. Yes, this is important. यही मुझे बस आंसर आपसे सुनना था. Important part Yes, is hypotenuse. 90 degree is not important क्योंकि 90 डिग्री तो बेटा हम यहाँ पर भी ले सकते हैं. सपोज आई एम टेकिंग दीज टू ट्राइंगल्स फॉर द सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये वो चीजें हैं जहाँ पे आप लोग के एग्जाम में मार्क्स कट होते हैं, और इस बार माइट भी ऑनलाइन एग्जाम्स हो तो आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा इन चीजों को समझने में. तो ये आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इजीली कर सकते हो. ये भी 90 है, ये PQR है, एंड दिस इज ABC आई एम टेकिंग. This is 5. Here also this is 5. Ma'am, the board is not Here clear. it is 7. Is it fine now? Ma'am, no. Board is not clear. Wait, only 1 minute.